Assalamualaikum everyone. This is the lab number 7 of yours, that is data wrangling part 2, and in this data wrangling we are going to understand what data scaling is, what data normalization is, how to set environment, how to scale or normalize the data, and etc. Before I start, let me tell you what data scaling is. So data scaling and normalization are the terms that are used interchangeably. Interchangeably का मतलब है कि normalization और scaling का मतलब यही है कि आप डेटा को एक certain format में ला रहे होते हो, ठीक है. स्केलिंग का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो एंड दीज नंबर्स विल बी इनटू ए सर्टेन रेंज. जैसे अगर कोई कॉलम है वो मेल एंड फीमेल का है तो इसकी स्केलिंग 0 और 1 में होगी. अगर कोई कॉलम है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिखा है तो इसकी स्केलिंग 0 1 2 हो सकती है, -1 0 1 हो सकती है, अप टू यू, ठीक है. जब आप एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करने जाते हो जैसे SVM हो गया, KNN हो गया, के नियरेस्ट नेबर्स या सपोर्ट वेक्टर मशीन, इन सबको जब आप यूज़ करते हो तो यू नीड डेटा टू बी स्केल सो दैट यू कैन अप्लाई एल्गोरिदम्स ओवर इट, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन में आपके पास क्या होता है, आप डेटा की शेप को चेंज करके फिट करते हो और डेटा को अपने ऐसे फॉर्म में लाते हो, नॉर्मलाइज करते हो, where you can apply statistical algorithms, where you can apply anything on the data set that will help you to get the result from the data set, or that will help you to make a machine learn over the data set, ठीक है. So सबसे पहले we have to download a data set. So obviously there is a Kickstarter project. ये वेबसाइट है जहाँ पे people क्या कहते हैं वेरियस प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करते हैं और उस डेटा को आप पढ़ सकते हो. अभी हम इस डेटा को रीड करके देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है. सो यू आर गोइंग टू गो टू दिस Kaggle, and a Kaggle you have to download it. I have already downloaded it. Once you download the data तो आपके पास ये archive के नाम से आएगा, and when you will extract it, so there are two files, KS201621 and 201801. Obviously I am going to follow the lab example. तो lab example में this example 201801 ये वाला KS projects का डेटा जो है वो यूज़ किया है. So I am opening that file. Obviously it is a huge file, Excel, so it is going to take time to open, but till then let me go here. अच्छा, इसको रीड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करनी है. Pandas and NumPy से I am familiar. SciPy is the library that is scientific Python. This scientific Python allows you to apply all the scientific statistics related to the math to your data set, okay. उसके बाद आपके पास एक प्री प्रोसेसिंग के लिए मशीन लर्निंग एक्सटेंडेड एक लाइब्रेरी है जिससे आप डेटा के अंदर स्केलिंग कर सकते हो मिनिमम एंड मैक्सिमम में. Seaborn आपके पास एक लाइब्रेरी है जो कि आपके पास प्लॉटिंग के लिए डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए काम आती है. और मैटप्लॉटलिब से यू आर फेमिलियर, वी आर गोइंग टू क्रिएट प्लॉट बाय दिस. Your computer will have everything irrespective of the MLExtend and Seaborn. अच्छा, मेरे पास Seaborn ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट अदरवाइज आप लोगों को Seaborn इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप पाइथन के किसी ऐसे वर्जन में है जहाँ Seaborn नहीं थी. MLExtend मेरे पास भी नहीं है, so I am going to install it, and obviously we are going to see how to install it. But let me say कि here I am, why I've opened this, let's close these. And here I am going to close this, and then let's see what is the Excel file saying. Okay, so this is the Excel file. We have the data set, ID है, name है, category है, main category है, okay, publishing है, currency है, US dollars, कब launch हुआ था, so date time है, pledge क्या था, country, US pledge कितना है, everything. अच्छा, द नेम ऑफ द किकस्टार प्रोजेक्ट में हमारे पास है दैट इज सॉन्ग्स ऑफ Adele समथिंग एंड अब्दुल्ला. Okay, where is Hank? There are so many. Alice in Wonderland, Daily Brew, Feathers. Okay, these are the Kickstarter's projects, and these Kickstarter projects will have some categories. Okay, so we know this is the data set, and obviously we will have some missing values, we will have some false values. See, जैसे यहाँ पे 0 0 है तो obviously it will be 0 value or obviously missing. So let's go there and go here. Okay, now मैंने pandas को import किया, numpy को import किया, yes, scipy को import कर लिया. Okay, fine. When I was extending MLExtend, it is saying that no MLExtend module is found, so we have to install MLExtend. So how to install it? You have to open Anaconda prompt.
here is anaconda prompt, and in anaconda prompt in the root directory or the base directory you have to do this. यहाँ पे आपके पास है pip install mlextend. I am copying it and I am going to paste it and enter it. So this is going to take a few minutes and then I hope हमारे पास mlextend install हो जाएगी, and once it is installed then obviously we are going to work फॉरवर्ड, बाद में हम काम करेंगे. सो हमेशा आप ऐसे करते हो एंड आपके पास ये इंस्टॉलेशन होती है. समटाइम्स कुछ लाइब्रेरीज आपसे पूछती हैं whether to install it or not. See, successfully installed mlextend. Okay. जब आप वापस से रूट डायरेक्टरी पे आ जाते हो तो इट मीन्स mlextend is installed. So let me go here again and call it again. Okay, see, now it is called. And now what I'm going to do, I am going to clear my kernel and restart करूँगी मैं कर्नल को और सारे आउटपुट्स क्लियर करूँगी, so that obviously I'm going to do the code step by step with you people. So I am going to close everything and let's start. Okay, so what we have to do is we have to go to this Word file, and why have I opened Cortana? Wait a minute, let me close Cortana. It is not closing. Okay, fine, let's not close it. Okay, the first two things are pandas and numpy. Pandas से data frame आएगा, so what I'm going to do, I'm saying import pandas as pd, and then we need numerical python numpy because obviously हमें arrays बनाने होंगे, हमें reshaping of the data set करनी होगी because we are doing normalization. So np ये okay, it is called. Now what I want a transformation so from scientific python, this I want what I want to import, that is stats. So from scientific python we okay, it is not giving me the IntelliSense, so let's type it explicitly. Read it. See, it is actually reading it, so it means that it is working. जब तक आपके पास हो तो yes, we read it. Now we have from mlextend import. अच्छा, फ्रॉम mlextend डॉट ऑब्वियसली हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, तो हमें प्री प्रोसेसिंग के हिसाब से मिनिमम मैक्स वैल्यूज़ चाहिए, तो हम अपने पास IntelliSense, मैं IntelliSense को अवेक करना चाह रही हूँ सो दैट वी नो कि कैसे है. आई डोंट नो वाई IntelliSense इज़ नॉट वर्किंग, पर लेट्स से फ्रॉम mlextend डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट मिनिमम min max. No, IntelliSense is really not working. I don't know why, but let's do this. Oh, I was missing D. Okay. Min max scaling में single L है. That's why I need IntelliSense. Because IntelliSense नहीं हो तो आपके पास फिर बहुत सारी mistakes आ रही होती हैं. खैर, mlextend के बाद obviously we note Seaborn. No, I don't need you. Okay. Seaborn हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास बहुत एडवांस ग्राफ बनाने के लिए काम आ रही होती है. तो हम कहते हैं इसका स्टैंडर्ड कॉलिंग इज़ SNS एंड देन matplotlib.pyplot. तो हम कहते हैं import matplotlib.pyplot. Yes, as obviously plt, and then the last one, let's read it. So I am going to do the naming convention same as obviously it is in your lab example, so that you won't have any problem. So Kickstarters 2017 is equals to, obviously we are going to use pandas to read the file, and let me copy the path from here of that data set. Control Z, Control C and V slash, and then obviously we are reading this file, so F2 Control C and Control V dot CSV. Yep.
Now obviously बैकस्लैश सिंगल ऐसे रीड नहीं हो सकता, वी नीड escape sequence for that, so we are applying escape sequences for that. Okay, let's read the file. See, now we have read the file. Okay, I have to go here. उसके बाद you can obviously इसको देख सकते हो, किक स्टार्टर्स की शेप देख सकते हो, इट्स अप टू यू. सो इससे पहले कि मैं किक स्टार्टर्स की शेप दिखाऊं या कहीं भी जाऊं, तो आई वांट कि हम ML एक्सटेंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें. सो लेट्स सी व्हाट ML एक्सटेंड डज. This is it, and I want you people to know what Seaborn does as well. So let's say introduction of the Seaborn. I want ML extend. Okay, ML extend is a machine learning extension, a Python library है जो day to day data science task के लिए काम आती है. ठीक है, and this is a simple examples that if you want to know अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, सो ML एक्सटेंड की अगर हम यूज़र गाइड पे जाएं और लेट्स से यूज़र गाइड इंडेक्स पे देखते हैं. आई वांट लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन. ओके, ML एक्सटेंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन देती है. इसके पास बहुत सारे क्लासीफायर्स हैं. ये आपको वन क्लासीफायर, परसेप्ट्रोर एंड सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन देती है. आप इसमें इमेजेस पे काम कर सकते हैं, फाइल आईओ पे काम कर सकते हैं, क्लस्टर्स पे काम कर सकते हैं. सो ये आपके पास डेटा साइंस के हिसाब से मशीन लर्निंग एक्सटेंशन के तौर पे काम करेगी. एंड देन वी हैव सीबॉर्न. तो सीबॉर्न हेल्प्स यू टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द डेटा. प्लॉटिंग फंक्शंस देती है. डेटा फ्रेम्स और एरेज को आप डिफरेंट डेटा सेट्स को प्लॉट कर सकते हैं और उनकी मैपिंग देख सकते हो, और इससे आप एक ऐसे इंफॉर्मेटिव ग्राफ बना सकते हो जिसमें आप स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो, रिलेशन देख सकते हो, कंपैरिजन देख सकते हो. सो Seaborn is an advanced library that helps you to create different kind of plots in order to understand the data or deduce some results from the data or get a comparative results from the data. ठीक है, so these are the libraries obviously that we are using. So अगर मैं यहाँ पे किक स्टार्टर्स 207 में से let's say I want head and we are reading it, so हमारे पास 5 values head की आ जाएंगी. So this is it. Now if I want to know the shape of Kickstarter's data set, so let's say dot I want shape. So we have unit 100, 1000, 10,000 and 378,661 rows and 15 columns. So it is a very huge data set. Okay, so now as we have read the data set, let's explore the data set first. So I have done this. आप head के बजाय sample भी कॉल कर सकते हो. As you people all know कि आपके पास sample भी ऐसा ही है, आप head के तौर पे भी काम कर सकते हो. It's up to you how you want to see the chunk of the data. So sample इसने कोई भी sample 5 ला कर दे दिए हैं, but head क्या करता है, हम लोगों को top 5 ला कर देता है. ठीक है, now as this is our data set, now we are going to do the data scaling. It is saying that US dollar gold real column. Okay, it is saying that from here US dollar gold real column low. Let me see what is US dollar gold real column. This is, it is saying that take this column and it is representing, this column is representing the goal of each campaign and how much money they were asking for. Okay, what was the money they were asking for, and let's range it from 0 to 1. So how to range it from 0 to 1? First we have to get the column from the data set. So let's get the column. So I am again telling you people that I am doing the naming convention exactly same as your lab, so that you people don't have any issue. So USD goal में से हम क्या कहते हैं कि स्टेटस डेटा सेट में से क्या करो, हमारे पास USD goal वाला USD goal real data set ला के दे दो. I am going line by line so that you people understand that. मैं line by line सिर्फ आप लोगों के लिए जा रही हूँ, otherwise you can do it and the way you want. See, these are the from starting 5 values that we fetched from the USD goal. So this is the USD goal value. अच्छा, हम अगर USD goal में से देखें कि हमारे पास mean value क्या है, मतलब हमारे पास जो mean value थी that was 45,454 US dollars was the mean or the average money that was asked for
or you can do a lot of things with the data. Let's say what was the maximum. So this was the maximum amount that was asked for, or let's see what it is. Unit 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 billion, 100 million, 166 million, billion, 361,390 US dollar were the maximum that they asked. And let's say what was the minimum they asked. It was 0.01. I mean, wow, it is way too low. Like they asked only $1. Why? Well, okay, now minimum max scaling, as you all know that we have imported the min max scaling. So from this min max scaling we can say give us the minimum and the maximum scaling of the column that we say. So let's scale our data and let's make this data that we have to range within 0 or 1. So let's name the scaled data. Okay, स्केल डेटा इज इक्वल्स टू सी. स्केल डेटा में हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं जो मिनिमम स्केलिंग का मॉड्यूल हमने लिया है उसमें क्या करो, जो यूएसडी गोल था इसे लो और कॉलम्स स्टाइल क्या रखो हमारे पास 0. ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो एंड लेट्स सी व्हाट इट डज. तो अगर मैं स्केल्ड डेटा, ओके व्हाट इज हैपनिंग विद यू. Okay, so we did this. What is the name? We are actually scaling the goals from 0 to 1. Now it is saying let's print the original slot. So हम यहाँ पे कुछ करते हैं. Okay, let me tell you. हमारे पास क्या होता है, आपके पास मल्टीपल प्लॉट्स आ सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे सब प्लॉट्स बन रहे होते हैं और वो प्लॉट सही से विजुअलाइज नहीं हो पाते. तो आपके पास मैटप्लॉटलिब के बाद एक चीज़ होती है दैट यू से सब प्लॉट. ठीक है, दिस सब प्लॉट प्लॉट्स द प्लॉट एंड इट इज गोइंग टू गिव यू two things. One is axis, second is the figure. So you have to store those axes and figures in some two. So what I'm saying create what, 2 subplots. Okay, and in a one row 2 subplots, and do what, give me the figure whatever it is and give me the axis of the plots. ठीक है, तो हम लोगों ने figure and axis इस plots के ले लिए. Now what we are doing, we are using the Seaborn library to display the plot that we have created it. And now let's see what it is happening. So what we are saying, हमारे पास हम कहते हैं जो SNS था. Okay, let's do this. Okay, illegal arguments 1,2. Why illegal arguments? अच्छा, it's a subplots. I am not creating one plot, I have creating 2 subplot, तो that's why that. See, अभी इसने क्या किया, मेरे पास एक ही रॉ पे दैट इज फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट रॉ पे इसने मुझे 2 कॉलम बनाकर दे दिए. राइट नाउ इट डजेंट नो व्हाट टू प्लॉट इन दीज कॉलम, सो आई हैव टू टेल हिम और गिव इट द डेटा दैट I require it to plot. So what I'm going to say भाई क्या करो, SNS लाइब्रेरी में से हमारे पास प्लॉट लो, डिस्टेंस प्लॉट, और इस डिस्टेंस प्लॉट में क्या करो, जो किक स्टार्टर्स अंडरस्कोर 2017 है हमारे पास, उसमें से दिस USD गोल्ड रियल को लो. ठीक है, USD गोल्ड रियल को लो और इसको हमारे पास जो एक्सिस है उसका एक्सिस क्या है, वट एवर द एक्सिस वॉज गिवन बाय this line of yours. So what I'm saying whatever the axis that the above plot is giving, kindly plot it. See, it did what, it is showing me this. Now I have a value here from 0, but we don't have any other value. So what we are going to do, the first plot is being plotted, that is the original value that was between the 0.0 and stuff. Now what I'm going to see, I'm going to set the titles. So let's say हम x0 का title set कर देते हैं. Okay, axis 0 because we have axis 0 and we have axis 1. So I'm saying axis 0. Okay, axis 0 dot set title. Yes. Okay. It is again not going on the intelligence, so I have to so these were the original let's say values, and in original values के बाद हम वापस से SNS को देते हैं दूसरा डेटा और एक्सिस 1 पर प्लॉट करते हैं. सो आई एम गोइंग टू से SNS को कि ठीक है, दोबारा से मुझे एक प्लॉट बना कर दो और उस प्लॉट में अब की बार मुझे ये वाला डेटा नहीं चाहिए बल्कि कौन सा डेटा चाहिए, दैट वी स्केल्ड. तो आई एम सेइंग गेट द स्केल्ड डेटा. ठीक है, सो स्केल डेटा ले. अब एक्सिस 0 नहीं है, वी आर गोइंग टू प्लॉट इट एक्सिस 1 एंड लेट्स से एक्सिस 1 का नाम हम क्या कह देते हैं, स्केल्ड वैल्यूज. ठीक है,
सो यहाँ पे हम कह रहे हैं दैट इज़ दिस स्केल्ड वैल्यू एंड वी वांट व्हाट द एक्सेस 1. सो एक्सेस 0 के अंदर हमारे पास डेटा सेट में दैट इज़ दिस ओरिजिनल कॉलम ऑफ योर्स, इस ओरिजिनल कॉलम की वैल्यूज आएंगी एंड आफ्टर वी हैव स्केल्ड दिस कॉलम इनटू द रेंज ऑफ 0 and 1. तो हमारे पास सेकेंड कॉलम पे क्या आएंगी, ये 0 1 वाली वैल्यूज आ रही होंगी. सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. सी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो 0 से लेकर हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो 3 तक जा रही थी और एक्सपोनेंशियल -7 तक वैल्यू जा रही है. ये USD गोल्ड रियल है और यहाँ पे हमारे पास 0.0 से लेकर यहाँ पे वैल्यू 0 and 1 के दरमियान है. So if I'm going to go here, so you can see that we have scaled the values between 0 and 1. See हमारे पास 0 से लेकर 1 तक की रेंज है और अगर हम यहाँ पे जाएं तो 0 से लेकर 1.5 तक की रेंज थी. ठीक है, सो वी हैव स्केल्ड द वैल्यूज़ बिटवीन क्या कहते हैं अपनी रेंज दैट वी सेट इन द 1 and 2. एंड इस स्केलिंग वैल्यू से क्या होगा कि एटलीस्ट डेटा की आपकी मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं आ रही होंगी एंड डेटा इज़ गोइंग टू बी कंटेन्ड इन अ वैल्यू और वो आपके पास ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन आसान हो जाएगी, डेटा रीडिंग आसान हो जाएगी. Now once you have scaled the data, let's select a column that is the USD pledged real. अगर मैं एक्सेल शीट पे वापस जाऊँ तो this is what the data is, USD pledged real. इस pledged real के डेटा को हम अगर नॉर्मलाइज करें तो नॉर्मलाइज करने के बाद हम टेक्निक देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ कैसी आती हैं. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में आप देखोगे कि डेटा को अपनी मर्जी से बताओगे कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क और हाउ द वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी नॉर्मलाइज. ठीक, सो हमारे पास इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव प्लेजेस ठीक है और कंट्रोल सेट. लेट मी गो हियर. सो नेमिंग कन्वेंशन इज इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव pledges is equals to and we have to do what, we have to get sub column of the data set. so वही किक स्टार्टर्स में से प्लेज देंगे और लोकेशन क्या लेंगे, इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव प्लेजेस. ठीक है, सो हम कहते हैं कि क्या करें, जो किक स्टार्टर्स 2017 है उसमें से हमारे पास USD रियल प्लेज. ठीक है, USD प्लेज रियल दे और इसमें क्या करें, लोकेशन है और उस लोकेशन को हम दे रहे हैं दैट इज दिस. ठीक है, ओके आई डिड वन थिंग रॉन्ग, सॉरी. पहले हम डेटा को मर्ज तो कर लें, वो ग्रेटर देन 0 हो. ओके, हम यहाँ पे देखें, अगर मैं देखती हूँ इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव प्लेजेस डॉट लेट्स से, बल्कि सभी प्रिंट करते हैं तो सी इट इज़ टेलिंग मी व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स. ऑब्वियसली इसने क्या किया है, वो सारी वैल्यूज़ मुझे बता दी हैं वट एवर वर द ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हुआ है, हमने कहा है कि स्टार्टर्स में से USD प्लेज रियल ले और जो ग्रेटर देन 0 हैं वो ले और इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव प्लेजेस में दे दें. अब हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेजेस हैं उन पॉजिटिव प्लेजेस में से क्या करें. ठीक है, अब हमने ग्रेटर देन 0 ट्रू फॉल्स जनरेट कर लिया और उसके बाद ट्रू फॉल्स जनरेट करने के बाद हम लोकेशन कहते हैं वट एवर द इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव प्लेजेस वाज वो हमें लाकर दे दे. ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव प्लेजेस आ गए. तो अगर हम यहाँ पे अब पॉजिटिव प्लेजेस को प्रिंट करके देखें तो सी आई हैव ऑल द प्लेजेस दैट वर ग्रेटर देन 0. और अगर हम अपनी एक्सेल शीट पे वापस जाकर देखें तो सी यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे 0 भी हैं और बहुत सारे, अगर हम नीचे कहीं जाएं तो नेगेटिव भी होने चाहिए. इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. लेट्स सी मुझे कहीं नेगेटिव दिखें तो नो, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ नॉट बीइंग शोन, बट लेट्स अज्यूम दैट कि यहाँ पे नेगेटिव में होंगे. खैर, सो दीज आर द कॉलम्स दैट वर पॉजिटिव प्लेजेस. ठीक है, तो हमने अपने क्या किया, अपने जो हमारे पास USD प्लेज था उन प्लेज में से हमने पॉजिटिव प्लेजेस को अपने पास सेपरेट कर लिया. नाउ दीज पॉजिटिव प्लेजेस आर गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड. तो हमारे पास नॉर्मलाइज प्लेज लेना है तो हम क्या कह रहे हैं, स्टैट्स में से बक्स कॉक्स लेते हैं. सो बिफोर आई यूज़ बक्स कॉक्स लेट्स से वी रीड बक्स कॉक्स है क्या. ठीक है, देखें SciPy स्टैट्स के अंदर एक बॉक्स कॉक्स है एंड बॉक्स कॉक्स डज व्हाट, बॉक्स कॉक्स इज ए क्या कहते हैं Sci फंक्शन दैट रिटर्न्स व्हाट, दैट रिटर्न्स अ डेटा सेट्स
by a Box-Cox power transformation? I need a definition. अच्छा ठीक है, देखें हम लोगों ने पॉजिटिव डेटा सेट क्यों लिया? Box-Cox रिक्वायर्स अ डेटा सेट टू बी पॉजिटिव. समटाइम Box-Cox ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड अ शिफ्ट पैरामीटर टू अचीव दिस. ठीक है, कभी कभी Box-Cox को शिफ्ट भी करता है. ओके, एंड नाउ इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव में ये क्या करेगा? x में वैल्यूज दे देगा. ओके, बट व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ Box-Cox? व्हाट इट डज, वी गेट इट. ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. और अच्छा, SciPy स्टैट्स पैकेज का फंक्शन है Box-Cox, जो कि क्या करता है? पावर ट्रांसफॉर्मेशन करता है नॉन नॉर्मल डेटा पे. ओके, इट फोर्सेस द डेटा टू बी नॉर्मलाइज. जो कि सारा नॉट नॉर्मल डेटा होता है वो इसे नॉर्मलाइजेशन में फिट करता है सो दैट यू कैन व्यू दैट डेटा. ऑब्वियसली जब डेटा बहुत भारी रेंज में होगा तो वी कैन नॉट व्यू इट. गॉट इट. नाउ what we are going to do, we are going to normalize it. So let's say normalized DGES. ठीक है, normalize pledges yes is equals to, हम स्टैट्स को कहते हैं कि तुम क्या करो, Box-Cox. ठीक है, Box-Cox obviously function है. So in Box-Cox we are going to give the positive pledges. So what, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि Box-Cox क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यूज लेता है और हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग लोकेशन देंगे दैट इज़ ज़ीरो, के स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरोथ लोकेशन. ओके, अब देखते हैं हमारे पास डेटा में चेंज क्या आया. लेट्स सी नॉर्मलाइज्ड प्लेजेस. तो इसने क्या किया? देखिए हमारे पास ये जो रेंज थी पूरी की पूरी 400 समथिंग की, इसने उसको उठाकर मेरे पास 0 से लेकर 10 तक की रेंज में रख दिया. इसने भी उसको नॉर्मलाइज करके एक रेंज दे दी है. ये हमारे पास क्या आ गया है? एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ में ले आया है सारी वैल्यूज़ को. एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ सेम वर्क दैट वी डिड काइंड ऑफ हेयर. So I am going to obviously copy it and paste it, but just we have to use the naming convention. So subplot same थे, positive pledges और x is 0 है. तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने किक स्टार्टर में से पॉजिटिव प्लेजेस लिए थे हम उसको लेंगे और उसके बाद ओरिजिनल वैल्यूज़ के बाद हमारे पास नॉर्मलाइज प्लेजेस. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने पास नॉर्मलाइज प्लेजेस देंगे. ठीक है, let's see what it does. See, हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 25 तक वैल्यूज़ थी. दैट इज वॉज वेरी 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 बिग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. उसके बाद इसने क्या किया? हमारे पास 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज किया. अगर हम एक्स एक्सिस देखें तो एक्स एक्सिस हमारे पास 0, 20 और 0.20 तक जा रहा था. तो इसने 10 के स्केल्स पे डिवाइड करके हमारे पास एक रीडेबल स्केल दे दिया. तो हमारे पास अब डेटा मोर रीडेबल है नॉर्मलाइज फॉर्म में एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वैल्यूज़. तो USD डॉलर के प्लेजेस में हमें अब यहाँ पे रेंज ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है रादर देन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. तो एक स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रही है बिकॉज मैक्सिमम डेटा लाइज इन द सेम category, so that's why it wasn't readable for us. So we are actually able to read it after normalizing the data. So once you have normalized the data, so you can read it more clearly. So it is not perfect. It looks like a lot of pledges got very few pledges. देखिए हमारे पास क्या हुआ? बहुत सारे जो pledges थे उनमें से बहुत कम pledges रह गए. So हमारे पास normalize तो है but it is not the perfect way to look the data. So what we can do, we can also कंसीडर करते हैं कॉलम प्लेज्ड को. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने पास जो प्लेज्ड कॉलम है उसके लेते हैं. तो हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ प्लेज्ड मैं नेमिंग कन्वेंशन पॉज इसलिए रख रही हूँ बिकॉज मुझे दोनों चीज़ें अलग रखनी है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू ठीक है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू रीनेम इट और रीवैल्यूएट इट. तो मुझे वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना ताकि मैं बाद में भी लगा सकूं. तो इसीलिए मैं अपने पास वैल्यूज़ को कैसा रख रही हूँ, चेंज कर रही हूँ. मैं पूरे पॉजिटिव को सिर्फ पॉज कर रही हूँ. सो हम क्या कहते हैं कि एक स्टार्टर में से प्लेज लेते हैं और प्लेज की लोकेशन देते हैं. लोकेशन इज़ व्हाट? इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव प्लेजेस. ठीक है, ओके. नाउ ऑब्वियसली हमें नॉर्मलाइज प्लेजेस भी लेने हैं. पहले हमने दूसरे कॉलम को किया था, हम नॉर्मलाइज की जगह पे नॉर्म लिख देते हैं सो दैट आई नो दिस इज़ अ डिफरेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मलाइज प्लेजेस में हम कहेंगे स्टैट्स को ही कि तुम क्या करो, Box-Cox लो
और बॉक्स कॉक्स को कह देते हैं तुम क्या करो, PS जो हमारे पास प्लेज है दैट इज़ दिस प्लेज, इन प्लेजेस को लो और लोकेशन 0 होनी चाहिए हमारे पास। गुड जॉब। अच्छा, ग्राफ एग्जैक्टली सेम था, तो मैं ग्राफ को क्या करूँगी, यहाँ से वैल्यूज़ कॉपी करी हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉपी इट। ओके, आई एम कॉपिंग इट। Fine, now I want not the positive pledges, I want PS pledge, and here I don't want normalized one, I want non-pledges. So see, these are the values that are the normalized values और pledge column का ये USD pledge column का normalized values है, and these are the values of scaled and original values of the USD gold real value. So आप क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हो, डेटा पॉइंट्स ले सकते हो। दिस इज़ अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू नॉर्मलाइज इट। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज़ करनी है, दैट इज़ लेट्स एग्जैक्टली रीड द डेफिनेशंस so that you understand what we are doing. This is a very good site, educative.io. If you want, you can go here. It is going to tell you so many things. देखें, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्केलिंग वैल्यूज़ होती है 0 से 1 की रेंज में। डेटा नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हो, ये यूज़ कहाँ होती है, मशीन लर्निंग के लिए, जहाँ पे आप मॉडल को ट्रेनिंग कराते हैं और मॉडल जो है वो स्केलिंग फीचर्स की तरफ लेस सेंसिटिव होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मॉडल जो है वो स्केलिंग फीचर्स की तरफ लेस सेंसिटिव है। ओके, लेट्स से हम कोई एक एक मेडिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रेंज ऑफ सर्टेन वैल्यूज़। लेट्स से हम HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल पे बात करते हैं, या केरेटिन लेवल पे बात करते हैं, या यूरिया क्रिएटिनिन लेवल पे बात करते हैं। सो वहाँ पे हमारे पास फीचर्स मैटर्स। We want exactly values and the spike of the values in the very exact same way because वहाँ पे हमें prediction करनी है। But let's say मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास we have a data of the boundaries in a cricket game और उन boundaries में how high the ball goes doesn't matter, only matter is that it hits the boundary as 4 or it hit the boundary as 6। तो वहाँ पे आप हाइट ऑफ द बॉल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो बिकॉज दैट डजंट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ बीइंग अ 4 और अ 6। सो हमारे पास जब डेटा ऐसा होता है कि ट्रेनिंग करते हुए अगर आप फीचर्स को स्केल डाउन कर दोगे और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप डेटा नॉर्मलाइजेशन को वहाँ यूज़ कर सकते हो। सो देखो, ओरिजिनल डेटा में क्या फ़र्क है, दिस वाज द ओरिजिनल डेटा इन द स्काइप एंड व्हेन यू नॉर्मलाइज्ड इट let the data go in a very normalized state and some values will be obviously compromised। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों के पास जब नॉर्मलाइजेशन हम कर लेते हैं, डेटा को एक रेंज में, एक स्केलिंग में कर लेते हैं, सो वी आर ऑब्वियसली वर्किंग दिस। नॉर्मलाइजेशन के बाद आई वांट यू टू नो अबाउट समथिंग SciPy एज वेल। सो SciPy की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना था एक्चुअली मुझे, लेट्स से यहीं से चलते हैं। वैसे मैं सर्च कर लेती हूँ। You can get the documentation of the Python modules obviously. So this is the documentation. I want the documentation of the scientific Python. देखें, scientific SciPy is the SciPy pronounced as and it is a scientific Python। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, APIs क्या होती हैं, रिलीज नोट, इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ से क्लस्टरिंग पैकेज scipy.cluster देख रही हूँ। सो इफ़ यू वांट अ डेटा टू बी क्लस्टर्ड तो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हो, हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, व्हाट आर द मॉड्यूल्स इट गिव्स अस। सो हमारे पास scipy.cluster है, क्लस्टर में हायरार्की है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑब्वियसली आई डोंट नो ऑल ऑफ दीज बिकॉज जाहिर सी बात है मैंने ये सब यूज़ नहीं किया, बट इफ़ यू वांट एंड यू कैन वांट टू रीड इट सो यू कैन रीड इट। यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो। अच्छा, सेकेंडली SciPy के अलावा Seaborn की डॉक्यूमेंटेशन मुझे आप लोगों को दिखानी थी, तो आई एम गोइंग देयर। सो Seaborn डॉक्यूमेंटेशन, ओके। अच्छा, Seaborn अगर आप लोगों के PC में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल में आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से पिप इंस्टॉल Seaborn लिखोगे, कहाँ पे, इसी एनाकोंडा पे जैसे मैंने लिखा था। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड Seaborn, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल लिख के एंटर किया था, आप एंटर करोगे तो Seaborn
will be installed in your PC. And where I was on the Seaborn. So अगर मैं यहाँ Seaborn पे जाती हूँ तो Seaborn statistical data visualization है. whenever you are doing data wrangling or the data statistics, it allows you to read the data set. ठीक है, तो Seaborn के ऊपर आप विजुलाइजेशन कर सकते हो. तो ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी पे बेस करता है. मैटप्लॉट लाइब्रेरी इसको प्लेसेस देगा सो दैट Seaborn विल वर्क, और आप इसको ग्राफिकल विजुलाइजेशन कर सकते हो. अगर आपको इंट्रोडक्टरी नोट्स चाहिए तो दिस इज़ द लिंक इज़ गिवन, सो आप इस इंट्रोडक्टरी नोट पे जा सकते हो. Seaborn को इंपोर्ट कैसे करना है, Seaborn पे काम कैसे होगा. जैसे अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूँ एंड लेट्स जस्ट गो देयर. Why? जी अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास it is saying set theme. Now I don't have set theme. Why? My Python version is upgraded. So आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वर्जन पुराना हो. ये 0.11.1 का वर्जन है, हो सकता है आपका वर्जन अपग्रेडेड हो. सो यू हैव टू सेट डिफरेंट थिंग्स ना. तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग तो आपके पास चीज़ चेंज कैसी है. सो आई जस्ट रेड के सेट स्टाइल एंड थीम आर द सेम थिंग ऑलमोस्ट अगर पढ़ा जाए. सो आई चोज इट. I'm not going to where it is going. I'm just telling you कि how what a total bill is when it is in lunch time and what a total bill is when it is in lunch. तो देखें SNS के अंदर एक डेटा सेट होता है टिप्स का. ठीक है, उस टिप्स के डेटा सेट को खुद ही से लोड करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास लंच टाइम में टिप्स इज़ दिस एंड डिनर टाइम में टिप आर दिस. अच्छा, इसमें हमारे पास ब्लू इज़ सेइंग यस दे गिव टिप्स एंड size is telling this how bigger the size is the bigger the tip and across those के people ने tips नहीं दी हैं. और see you are seeing the difference. Blue is more, blue or less in dinner. Similarly cross is more, cross or less. lunch time में लोगों ने tips बहुत कम दी हैं because the size is smaller. dinner time में लोगों ने tips ज़्यादा दी हैं because the size is bigger. so this is the Seaborn ना. तो आप कभी भी किसी लाइब्रेरी को जब पढ़ने जाते हो तो it is okay for you कि आप क्या कर सको, आप अपने पास कुछ चीज़ें रीड कर सको, पढ़ सको. इसी तरीके से ये भी है हमारे पास एक Seaborn का स्टाइल है. लेट्स डू दिस. आई एम जस्ट कोडिंग इट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. सो देखें हमने डेटा सेट लिया डॉट्स का. ठीक है, उस डॉट्स के डेटा सेट को इट इज़ वर्किंग. देखें इसने हमें बताया है कि हाउ डॉट्स आर अलाइंड. सो इट इज़ सेइंग T1 and T2. These are the straight lines, T2 are the lines and this is the width telling you the choice. align dots, align sec. So टाइम के हिसाब से फायरिंग रेट कितना था. ठीक है, आपके टाइम पे फायरिंग रेट कैसे बढ़ा कैसे नहीं बढ़ा, तो दीज आर द थिंग्स. ठीक, सो आप ऐसे बात कर सकते हो, देख सकते हो. सो दिस वाज योर ऑब्वियसली क्या कहते हैं डेटा रैंगलिंग पार्ट 2 लैब. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ठीक, सो लेट मी एक्सप्लेन द कोड टू यू पीपल. ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू. Okay, let me explain the task that you people have to do line by line so that you people won't have any problem in it. And then inshallah if you have any queries more, so we are going to discuss it in the class. First आपके पास random 1000 points generate होने चाहिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से. सो आप क्या करोगे, ओरिजिनल डेटा में मतलब यू आर गोइंग टू नेम अ वेरिएबल ओरिजिनल डेटा और रैंडम एक्सपोनेंशियल पॉइंट्स जनरेट करोगे नंपाई एरे के ऑफ द साइज 1000. नाउ इन साइज 1000 की रैंडम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ पे आप मिनिमम एंड मैक्सिमम स्केलिंग करोगे 0 and 1 पे. So you don't have to download a data set, you just have to do it. मतलब if I am going to copy this line and I am going to just let you people see how it is working so that you people have idea. So I'm going to do this.
See, it did this. It created 1000 data set of the random values. सो ऑब्वियसली आपको कहीं तो काम करना है ना, तो और आपके पास डेटा जब तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होगा आप उसको नॉर्मलाइज करके किसी स्पेसिफिक रेंज में कैसे लाओगे? Got it? So what you are going to do, you have to do this. So first you have to create a set of original data, then you have to apply the minimum maximum scaling of the data set with the column 0. Now you have to plot both the original data and the data that you क्या कहते हैं scales, and see the difference, and you have to explain a little bit. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, but I will want you people to explain a little bit what is the difference between the two data. Then again the normalization में आप दोबारा से 1000 generate करोगे, normalize करोगे, और normalize करने के बाद you have to plot the data, and then you have to again discuss this. Let me write it here, and यहाँ पे मैं लिख देती हूँ using this, or let me write it and discuss thoroughly and discuss results thoroughly. ठीक है, so that you people know how the things are working or how to write it, because obviously if you don't know how to explain your data set, then what's the point of the data set ना? So आप लोगों को अपना data देखना है, उसको properly explain करना है, and you have to do this. So this was the part 2 of the data wrangling and killing, in which you perform the normalization of the data set. Inshallah, if you have any queries or the questions, we are going to discuss in the class that will be on Wednesday. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.